اور اب میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ عرب کو عرب کہتے کس لیے تھے، عرب یہ نام کیوں پڑا تھا اس کا. یہ انسانوں کی طبیعت کے حساب سے میل کھاتا ہے، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں عرب نام کیوں رکھا گیا. عرب کس کو کہتے ہیں؟ لفظ عرب عین را با، یہ عربی میں لفظ جو ہے اس کا میننگ ہوتا ہے اچھی زبان رکھنے والا، فصیح اللسان جو آدمی ہے عرب کہتے ہیں اس کو. یہ عرب اپنے آپ پر اتنا غرور رکھتے تھے، وہ کہتے تھے کہ پوری دنیا میں اگر سب سے اچھی زبانیں تو ہماری ہے، باقی کو عجم کہتے ہیں. عجم کا مطلب ہوتا ہے گونگا، وہ ہم سب کو گونگا کہتے ہیں. سارا عجم ہے، عرب کو چھوڑ کر کے جتنا ہے وہ سب عجم ہے. فارس عجم ہے، ہند عجم ہے، افریقہ عجم ہے، امریکہ عجم ہے. عجم کا مطلب گونگے. عرب لوگ اپنے آپ کو صرف زبان والا کہتے اور باقی پوری دنیا کو گونگا سمجھتے تھے. تو یہ نخوت جو تھی، یہ بڑاپن جو تھا، یہ تکبر جو تھا، وہ وہاں کے موسم کے اعتبار سے پتھریلی زمین کی وجہ سے ان کی طبیعتوں میں گھر کر گیا تھا، جلدی ایکسیپٹ نہیں کرتے. ایسے سخت دلوں کے اندر اور ایسے سخت قوم کے اندر اسلام کا نور ظاہر کرنا یہ کوئی عام بات نہیں تھی، عام بات نہیں تھی. اللہ رب العزت کی مصلحت اور اس کی حکمت بالغہ کو دیکھے. اللہ کریم نے اپنے آخری رسول کے لیے جو زمین منتخب فرمائی وہ افریقہ کی سرزمین نہیں تھی، نہ ہی کوئی ہند کی سرزمین، نہ یورپ کی سرزمین، بلکہ عرب کی سرزمین کو منتخب کیا گیا. اس لیے مجھے زمین کا جغرافیہ بتانا ضروری ہے کہ یہ لوکیشن کے اعتبار سے بیچوں بیچ میں آباد ہے، پوری دنیا کا سینٹر کہلاتا ہے. اس لیے کہ یہاں سے روشنی نکلے تو پوری دنیا میں پھیلے. یہاں سے نکلا ہوا ابر ہر زمین پر بارش بن کر کے برسے گا. اور برسا بھی اللہ کریم نے مکہ مکرمہ کی سرزمین کو منتخب فرمایا. طبیعتیں کیسی تھی، اکھڑ مزاج لوگ تھے، ان کے درمیان میرے آقا کو پیدا کیا اللہ نے. اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس دن پیدا ہوئے یہ بی بی آمنہ کا گھر تھا، اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یتیمی کی حالت میں پیدا ہوئے ہیں. باپ نہیں ہے، ماں پرورش کرتی رہی. عربوں کے رواج کے اعتبار سے دادا کی شفقت بہت زیادہ تھی اپنے پوتے پر، کیونکہ بیٹے عبداللہ بہت محبوب نظر تھے، بڑے پیارے تھے. لیکن جب جوانی میں انتقال کر گئے تو حضرت عبد المطلب کو اس کا بڑا صدمہ تھا کہ میرا سب سے محبوب بیٹا عبداللہ مدینے میں انتقال کر گیا. تو اپنی بہو حضرت آمنہ اپنے پوتے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پرورش میں جی جان لگا دیا. اتنا لگا دیا، آپ کو پتا ہے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام پاک آج کروڑوں مسلمانوں کی آنکھوں کا تارا ہے. حضور کا نام جیسے ہی ہم محمد نام لیتے ہیں ہم انگوٹھوں کو چوم کر کے آنکھوں سے لگاتے ہیں. یہ نام پاک عام نام نہیں ہے. اس نام پاک کو بزرگان دین تو ایسے تھے کہ حضرت محمود غزنوی کا نام سنا ہے، ان کے خاص وزیر تھے ایاز. ایاز کے بیٹے کا نام تھا محمد. محمود جو ہے سلطان محمود اپنے وزیر کے بیٹے محمد کو بہت پیار کرتے تھے. ایک دن جو ہے آپ ایاز کے بیٹے کو محمد کہہ کر نہیں بلا رہے ہیں بلکہ کہتے اے ابن ایاز، اے ایاز کے بیٹے ادھر آ جا. ایاز نے سن لیا، کہا آج سلطان غضبناک ہوں گے، میرے بیٹے کا نام لے کر کے نہیں پکارا، باپ کے نام سے پکارا ہے. بعد میں حاضر ہو کر پوچھا سلطان میرے بیٹے سے کوئی خطا ہوئی، آپ خفا تو نہیں ہے؟ اس کے نام سے نہ پکارتے ہوئے اس کو ابن ایاز کہہ کر پکارا. سلطان محمود نے کہا ایاز ایسی بات نہیں، خفا نہیں، بلکہ میں وضو کی حالت میں نہیں تھا اس لیے تیرے بیٹے کا نام محمد ہے، میں بغیر وضو کے کبھی اس کا نام بھی نہیں پکارتا. اور علامہ عبد الرحمن جامی فرماتے ہیں ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیس. یا رسول اللہ ہزار بار میں اپنے منہ کو گلاب کے پانی سے، مشک و عنبر کے پانی سے دھو لوں، اس کے بعد بھی آپ کا نام پکارنا میں بے ادبی سمجھتا ہوں. یہ علامہ عبد الرحمن جامی. میں بات کیوں کہہ رہا ہوں حضور کے نام کی؟ یہ محمد نام کسی اور نے نہیں، حضرت عبد المطلب نے رکھا تھا. آپ کے دادا، آپ کے جد امجد جیسے حضور کی پیدائش ہوئی تھی گھر دوڑے دوڑے آئے تھے بی بی آمنہ کے، اور فوراً اٹھا کر کے گودی میں لے لیا اور خانہ کعبہ کے پاس آئے اور خانہ کعبہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے اللہم ھذا ابنی سمیتہ محمدا. اے اللہ دیکھ یہ میرا بیٹا ہے اور میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے. عرب کے بہت سارے لوگ وہاں موجود تھے، یہ نیا نام تھا ان کے لیے. عرب میں جو نام رکھے جاتے ہیں وہ باپ داداؤں کے نام پر چلتے ہیں، وہاں پر نئے نام نہیں رکھتے، خاندان کے اپنے خود پرسنل نام چلتے رہتے ہیں.
पर्टिकुलर नाम होते हैं, वही नाम रखे जाते हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने नया नाम रखा था, तो अरब के बहुत सारे कबीले आए और पूछा, या अब्दुल मुत्तलिब लिमा सम्मैतका इब्नी इब्नका हादा मुहम्मदा, ऐ अब्दुल मुत्तलिब आपने लिमा सम्मैता हादा मुहम्मदा, क्यों आपने इसका नाम मोहम्मद रखा है? तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब मुस्कुराए और कहा, तुम्हें पता है मोहम्मद का नाम का मतलब क्या है, मोहम्मद के मीनिंग क्या है? कहा, मोहम्मद कहते किसे हैं? मोहम्मद उसको कहते हैं जिसकी सारे लोग तारीफ करें, सबसे ज्यादा जिसकी तारीफ की जाए उसको मोहम्मद कहा जाता है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, मैंने अपने इस बेटे का नाम मोहम्मद इसलिए रखा है कि जब भी कोई नाम ले तो न चाहते हुए भी मेरे बेटे की तारीफ हो ही जाए। आज मेरे आका की शान में किसी को गुस्ताखी करना भी हो, मेरे आका का नाम मोहम्मद लेता है तो पहले हुजूर की तारीफ कर ही रहता है, वो करके ही रहता है। अजीज़ान गिरामी वक़ार, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने बड़ी शफ़क़त दी। अरब के मशहूर कानून और वहाँ के दस्तूर के मुताबिक कि अरब लोग अपने बच्चों की हिफाजत के लिए, यानी उनकी ज़ुबान की हिफाजत के लिए देहातों में भेजते थे कि इनकी ज़ुबान महफूज रहे। शहरों की ज़ुबान जो है मिक्स हो जाती है, जैसे मुंबई की ज़ुबान, इसका कोई अता पता नहीं है, इसमें यूपी भी मिला हुआ है और राजस्थान भी है, गुजराती भी है, कर्नाटकी भी है, सब मिला करके मिक्स हो गई, क्योंकि हर जगह के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ये शहर है और शहरों में हर इलाके के लोग आते हैं, अपनी अपनी थोड़ी थोड़ी सी बातें उसमें दाखिल कर देते हैं और ये एक मिक्सचर लैंग्वेज बन जाती है और इसको पता ही नहीं रहता इसकी ओरिजिनल लैंग्वेज क्या थी। मक्का ऐसा था कि हर जगह से लोग आते थे, हज के लिए आते थे और कई कई महीने रहते थे। तो कुछ लोग अरबी जानते नहीं थे, कोई फारसी उसमें दाखिल कर दिया, कोई अलग जुबान इब्रानी दाखिल कर दिया, सुरियानी दाखिल कर दिया। तो वहाँ पर जुबान की हिफाजत की बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि उस दौर में सबसे बड़ा अगर कोई ओहदा था तो जुबान का था। जुबान जिसकी अच्छी हो वो अरब में सबसे ज्यादा इज्जत वाला था। तो इसके लिए माएँ अपने बच्चों की जुबान की हिफाजत के लिए बचपन में उनकी परवरिश मक्का में नहीं करती थी, बाहर भेजती थी। इस रिवाज के चलते हुए 6 महीने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम 6 महीने हज़रत आमिना की गोद में थे। फिर वो हलीमा सादिया के वक्त चमके, नसीबे चमके कि वो दाया थी बनु साद कबीले की। ताइफ से आगे एक इलाका बनु साद आज भी मौजूद है, ताइफ से 80 किलोमीटर दूर, वहाँ से वो आई थी। 180 किलोमीटर का सफ़र करके आई थी और मक्का मुकर्रमा में उन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को गोद ले लिया। तफसीलात में नहीं बता रहा हूँ, तारीख़ है चूँकि, क्योंकि हम मौलिद शरीफ में तफसीलात बयान करते हैं, ये तारीख़ इस्लाम है, इसके लिए मैं चलती चलती मुख्तसर झलकियाँ रख रहा हूँ। हलीमा सादिया लेकर गई, 2 साल परवरिश करके वापस ले आई हज़रत आमिना के घर। हज़रत आमिना अपने नूर नज़र को लेकर साथ रहती। जब हुजूर की उम्र 6 साल की हुई थी तो 6 साल की उम्र में हज़रत आमिना मदीना निकली, क्योंकि उनका ननिहाल भी था और अपने शौहर हज़रत अब्दुल्ला की कब्र भी वहाँ थी। इंतकाल के बाद से वो गई नहीं थी, तो अपने बेटे के बड़े होने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को लेकर के वो मदीने गई, ननिहाल गई और उसके बाद यानी हुजूर के ननिहाल और फिर वापसी में हज़रत अब्दुल्ला की कब्र से होते हुए आ रही थी। वहाँ की बीमारियाँ हज़रत आमिना को भी जकड़ लीं। ऐसी बीमार हुई कि अबवा एक जगह है बद्र के करीब, अबवा मदीना और मक्का के बीच में, हज़रत आमिना वो ज़्यादा देर आगे चल ना सकी, वहीं पर आपकी वफ़ात हो गई। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र पाक 6 साल की है। खुद रसूल महतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से अपनी माँ को दफन किया। हुजूर के साथ उस वक्त आपके वालिद की एक कनीज़ थी, उम्मे ऐमन, ये साथ रहती थी। और बस हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वापस मक्का जब आए, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को जैसे पता चला कि हज़रत अब्दुल्लाह की बीवी आमिना भी इंतकाल कर गईं, वो फ़र्त गम में, जोश गम में हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को ऐसे करीब कर लिए कि एक लम्हे के लिए भी अपने आंखों से ओझल नहीं होने देते। लेकिन हुआ क्या, मशीयत एज़ दी जो चाहे। 8 साल की उम्र थी मेरे आका की, दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब भी फौत हो गए। ये दौर गुजरता गया। दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने इंतकाल से पहले अपने बेटे हज़रत अब्दुल्लाह के सगे भाई जनाब अबू तालिब के हवाले कर दिया था अपने इस पोते को। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को जनाब अबू तालिब के हवाले कर दिया और कहा कि तुम इसकी निगरानी करना। तो जनाब अबू तालिब ने ऐसी निगरानी की कि अबू तालिब के घर में बेटे तो हुए, उनके बेटे अकील हैं, उनके बेटे जाफ़र हैं, उनके बेटे हैदर करार, अली और मुर्तज़ा हैं, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की परवरिश में ऐसा कमाल का किरदार अदा किया कि अपने बेटों को भी कुछ नहीं समझते हुजूर के आगे, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे। एक रिवायत जो है बदन में रोंगटे खड़े कर देती है।
میں آج بھی بحث نہیں کروں گا ایمان ابو طالب کے متعلق، ہمارے قتل آرا بحثوں میں سے ہمارا ٹاپک آج تاریخ اسلام ہے، لیکن ان کی پرورش کا انداز ایسا تھا۔ صرف ایک بات اگر میں بتا دوں، شاب ابی طالب میں جب 3 سال تک مکہ والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ کیا تھا، سوشل بائیکاٹ، کبھی بھی حملہ ہونے کا اندیشہ رہتا تھا کہ لوگ آ کر کے حضور کو قتل نہ کر دیں۔ رات کے وقت، کیونکہ عرب اتنے دشمن تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کی بات کر رہا ہوں، یہ روایت بیچ میں عرض کر رہا ہوں، جناب ابو طالب رات کے وقت جب حضور سو جاتے تھے تو ان کو اٹھا کر کے دوسری جگہ سلاتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جگہ خاص تھی، حضور کی جو چادر تھی، اس جگہ اپنے بیٹے کو سلا دیتے تھے، اور یہ کہتے ہماری نیند کے وقت میں اگر کوئی دشمن آ کر حملہ بھی کرے تو محمد پر حملہ نہ ہو، میرے بیٹے پہ حملہ ہو۔ یہ کمال کی شفقت کے ساتھ انہوں نے پرورش کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب آپ کی عمر پاک 12 سال کی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جناب ابو طالب کے ساتھ آپ تجارت کے لیے نکلے ملک شام، کیونکہ خاندانی مشغلہ تھا تجارت، ابو طالب ساتھ میں لے کر کے گئے۔ یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے تاریخ کا کہ بیچ راستے میں ایک بحیرہ راہب، ایک عیسائی پادری تھا، جہاں پر یہ قافلہ رکا تھا، بحیرہ راہب نے دیکھ کر کے ہی کہا ہذا سید المرسلین، یہ رسولوں کا سردار آیا ہے۔ عیسائیوں نے پوچھا تمہیں کیسے پتا؟ کہا میں نے ان کو دیکھا ہے 12 سال کی عمر کے، جب یہ آ رہے تھے رات کے وقت پہاڑوں کے اوپر سے اتر رہے تھے، میں نے دیکھا کہ سارے پہاڑ سجدے، سارے جتنے بھی درخت ہیں وہ اس 12 سالہ لڑکے کے لیے سجدے میں گرے ہوئے ہیں، اور میں نے دیکھا کہ دن میں یہ جب چلتے ہیں تو سورج کی روشنی ان پر نہیں پڑتی، بادل کا ایک سایہ ان کے اوپر سایہ بنائے ہوئے چلتا ہے، بادل کا ایک ٹکڑا سایہ بنائے ہوئے چلتا ہے۔ یہ بحیرہ راہب نے ابو طالب کو بلا کر پوچھا کون ہے؟ کہا میرا بھتیجا ہے۔ کہا میری ایک بات سن لو، اچھا ہوگا کہ تم ان کو ملک شام مت لے جانا، وہاں یہودی ہیں، وہ ان کے قتل کے در پہ ہو جائیں گے، کیونکہ وہ اس انتظار میں ہیں کہ آخری نبی ان کے خاندان میں پیدا ہوگا، یہ تو تمہارے خاندان کا نصیبہ ہے، اگر تم لے جاؤ گے تو یہودی قتل کر ڈالیں گے، تم یہیں سے ان کو واپس مکہ لے جاؤ۔ جناب ابو طالب گھبرا گئے، ڈر گئے، کہا کہ میں اپنے اس بھتیجے کو ملک شام نہیں لے جاؤں گا۔ بیچ راستے سے ہی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے کر وہ مکہ واپس آئے۔ یہ وہ بشارت تھی، 40 سال کے بعد حضور نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا، لیکن خبریں تو 12 سال سے ہی مشہور ہو چکی تھی، خبریں ہو چکی تھیں۔ بحیرہ راہب نے یہ کہا، اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تجارت کو اپناتے رہے۔ جب آپ کی عمر پاک 25 سال کی تھی تو مکہ مکرمہ کی ایک معزز خاتون، بڑی مالدار خاتون تھی، حضرت خدیجہ، جن کے 2 شوہروں کا انتقال ہو چکا تھا، اب وہ کسی سے شادی کرنے کے موڈ میں کبھی نہیں تھی، لیکن وہ بڑی مالدار تھیں، انہوں نے اپنا مال تجارت کسی کو دے کر کے انویسٹ کروا کر کے تجارت کرواتی تھیں۔ جب ان کو پتا چلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑے امانت دار ہیں، بڑے ہی دیانت دار ہیں، تو اپنا مال ان کو دیا اور کہا کہ تم تجارت کرو اور نفع کما کر کے لے آؤ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مال تجارت لے کر ملک شام گئے، اور اتنا نفع ہوا اس مال میں، واپس جب آ رہے تھے تو حضرت خدیجہ کا ایک غلام میسرہ تھا، حضرت خدیجہ نے کہا تھا میسرہ تم ہمیشہ محمد پر نظر رکھنا، دیکھتے رہنا یہ کیسی کیسی تجارت کرتے ہیں، کتنا نفع کرتے ہیں، اسی لیے نہیں کہ خرد برد ہوگا، اس لیے کہ مدد کے طور پر۔ جب یہ قافلہ واپس مکہ آ رہا تھا، اب پھر ٹرننگ پوائنٹ ہے یہاں پر، حضرت خدیجہ اپنے گھر کے بالا خانے پر بیٹھ کر کے اپنا نفع شدہ قافلہ جو مکہ میں داخل ہو رہا ہے اس کو دیکھنے کے لیے بیٹھی ہوئی تھی، بڑا گھر تھا، بڑا محل تھا، جب وہ اوپر سے نظارہ کر رہی تھی وہیں سے دیکھ کر کے وہ گرویدہ ہو گئی کہ اتنی دور سے دیکھ رہی تھی، قافلہ صاف نظر نہیں آ رہا تھا لیکن چہرہ محمد سب سے زیادہ چمکتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ حضرت خدیجہ کہتی ہے میں نے چاند کو بھی اتنا تیزی سے چمکتے نہیں دیکھا جس طرح ملک شام سے یہ لوٹتا ہوا قافلہ محمد کا چمکتا ہوا چہرہ لے کر آ رہا تھا۔ حضرت خدیجہ کہتی ہے عجیب حالت تھی، قافلہ تو تجارت کر کے آ رہا ہے لیکن میں نے دیکھا اس قافلے کے اوپر جو دھوپ کا وقت ہے اس وقت آسمان کا ایک ٹکڑا، بادل کا ایک ٹکڑا سایہ بن کر کے چلتا ہوا آ رہا ہے، جس طرف محمد جا رہا ہے اس طرف وہ ٹکڑا بھی چلتا جا رہا ہے، آگے پیچھے نہ جانے کون سی مخلوق چل رہی تھی۔ حضرت خدیجہ کا دل یہیں سے بے قرار ہوا۔ ملک شام سے تجارت کر کے واپس آنے کے بعد، جبکہ حضرت خدیجہ کی 2 شادیاں آلریڈی ہو چکی تھی، انتقال ہو چکے ان کے شوہروں کے، 40 سال کی عمر ہو چکی تھی، شادی کرنے کا کوئی خیال نہیں تھا، لیکن حضور پاک کے چہرے پاک کو دیکھنے کے بعد، ان کی خصوصیات دیکھنے کے بعد
नफ़ा लेते ही आपने पैगाम भेज दिया। मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कहा क्या आप मुझसे निकाह करना चाहें? वो रूए मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गर्विदा खातून, उनका पैगाम पहुंचते ही रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुद से कबूल नहीं किया, अपने चचाओं और फूफियों के दरमियान इस मसले को रखा। जनाब अबू तालिब थे, सारे फूफियाँ और चचा बैठे, उनके सामने रखा कि हज़रत खदीजा के पैगाम निकाह आया हुआ है। सारे लोगों ने कहा तुम्हें पता है खदीजा पूरे मक्का में ताहिरा के नाम से जानी जाती हैं, सबसे पाकीज़ा खातून। इज्जत तो ऐसी थी कि अदना से अदना आदमी भी और ऊंचा से ऊंचा आदमी भी हज़रत खदीजा की तरफ चेहरा उठाकर नहीं देखता, उनकी इज्जत बड़ी थी। कहा कि अगर मोहम्मद तुम्हारे लिए उनकी तरफ से पैगाम आया है तो कबूल कर लो। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जवाब भेजा कि मुझे बताया गया है कि मक्का में सबसे शरीफ खातून अगर कोई है तो खदीजा का नाम है। मेरे अजीजों, खातून शरीफ क्यों ना होगी? इसलिए कि जिसके पेट से पैदा होने वाली बेटी फातिमतुल ज़हरा हो, सैयदा कायनात हो, तो फिर माँ का आलम क्या हो सकता है? अल्लाह करीम ने ये इंतखाब फरमाया था। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस निकाह को दिलो जान से पसंद किया। निकाह की तकरीब हुई। निकाह की तकरीब में जनाब अबू तालिब और हुजूर के सारे चचा और फूफियाँ भी शरीक हुए। खुतबा निकाह का खुतबा जनाब अबू तालिब ने पढ़ा था। वो खुतबा आज भी मौजूद है जो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पहले निकाह में खुतबा हुआ था। इस खुतबे के बाद निकाह मुकर्रर होने के बाद रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये शरीक हयात, ये रफ़ीक़ हयात, ये महबूब रब्बुल आलमीन सैयदा खदीजा हुजूर की ऐसी वफा शार खातून बन करके रही कि अल्लाह की कसम आज भी पूरी रुए ज़मीन पर जो मेरे आका की औलाद सादात के नाम से जानी जाती है वो कहीं और नहीं, वो खदीजा की पेट से पैदा होने वाली औलाद है। हज़रत खदीजा के बतन से मेरे आका की 6 औलाद हुई, 3 बेटे और 3 बेटियां। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की 6 औलाद की माँ हज़रत खदीजा है। ये बड़ी उल्फत और मोहब्बत की ज़िंदगी गुजरी है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। लेकिन जब मेरे आका की उम्र पाक 50 साल की हुई और हज़रत खदीजा की उम्र उस वक्त तकरीबन आप अंदाज़ा कर सकते हैं 25 साल ज़्यादा थी, 75 साल की खातून थी। 75 साल की खातून, अल्लाह अकबर, 75 साल की खातून किसको कहते हैं? उम्र का वो पड़ाव जिसमें बूढ़ा अपने आज़ा से मजबूर हो जाता है और उसके पट्टे जवाब दे जाते हैं, चलना फिरना दुभर हो जाता है। लेकिन कसम खुदा की जब मैं ये रिवायत पढ़ता हूँ कि जब रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 3000 फीट ऊंची पहाड़ी गारे हिरा में जाकर इबादत करते थे, कभी 2-2 दिन तक नहीं आते थे, तो 75 साल की ये खातून दिन में 2 मरतबा पहाड़ी पर जाती थी खाना लेकर के और उतरती थी। आज मैं बताऊं, हम जैसों की जवानी में एक मरतबा पहाड़ पर चढ़ करके आ जाए, 8 दिन तक पट्टे दर्द करते हैं, पैर दर्द करते हैं। मैं समझ नहीं पाता वो खदीजतुल कुबरा की वफा शियारी को दिन में 2 मरतबा अपने नबी पाक अपने रफीक हयात के लिए ऊपर जाती थी, नीचे आती थी। कभी रसूलुल्लाह पहाड़ से उतर रहे होते, हजरत खदीजा घर के बाहर आकर खड़ी होती, कड़ी धूप होती, सूरज की तमाजत होती, लोग चलते फिरते कहते खदीजा अपने शौहर का इंतजार कर रही हो? कहती हाँ, मेरे शौहर पहाड़ से उतर रहे हैं, गारे हिरा से आ रहे हैं। उस वक्त लोग कहते खदीजा अंदर छांव में बैठो, इंतजार करो, उनके आने में काफी वक्त है। खदीजा कहती मेरा दिल गवारा नहीं करता मेरा शौहर धूप में उतर रहा हो और उनकी औरत छांव में बैठी रहे। जब तक वो धूप में उतरते रहेंगे मैं धूप में खड़ी रहूंगी। ये वफा शियारी ऐसी थी, आपको पता है सबसे पहली वही कुरान की जो गारे हिरा में आई है, जिब्राइल अमीन लेकर के आए हैं। इस्लाम की तारीख में अगर ये ना बताएं तो इब्तिदा ही ना होगी, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब 40 साल की उम्र में थे, गारे हिरा में जाकर इबादत करते, जिब्राइल अमीन आए कुरान की आयतें लेकर और हुजूर से कहा इक़रा। हुजूर ने कहा मा अना बिक़ारी, मैं नहीं पढ़ूंगा। वो कहते थे पढ़ो, हुजूर कहते मैं नहीं पढ़ूंगा। सीने से सीना लगाकर दबोचते थे। 3 मरतबा हुआ, 4थी मरतबा का इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़ो उस रब के नाम से जिसने पैदा किया है। रसूल मुहतरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पढ़ना शुरू किया और फिर आयतें सबसे पहले जो आई हैं, इस्लाम की इब्तिदा नूर इलाही का ज़ुहूर है, नूर इलाही का नुज़ूल है, अल्लाह का कलाम उतर रहा है पहाड़ पर, पहाड़ की चोटियों पर, जिसको आज भी जबल नूर कहा जाता है। नूर की पहाड़ी, जहां नूर उतरा, नूर का पहाड़ है। और किस पर उतरा? जिस पर उतरा वो नूरुन अला नूर है।
कुरान की आयतें आई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। ये 5 आयतें देकर जिब्राइल अमीन चले गए। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर जो वही आई थी उसका असर ऐसा था, सख्त ठंडियों के दिन थे, मोटे मोटे पसीने के बूंद पेशानी से निकलते थे। जब रसूल पाक तशरीफ लाए, पहला वाक़या देखा था हुजूर ने, पहला वाक़या था जिब्राइल अमीन इस तरह आयतें लेकर आए। ये आयतें उतरना आसान बात नहीं, कुरान खुद कहता है, मेरा मौला फरमाता है अगर हम ये पहाड़ों पर उतार देते, पहाड़ रेजा रेजा हो जाते, टुकड़े टुकड़े हो जाते, लेकिन कल्बे मुस्तफ़ा ने इसका बोझ उठा लिया है। रसूलुल्लाह के दिल ने इस अमानत को उठाया था, लेकिन चल करके दुनिया का वो पहला इंसान, दुनिया की वो पहली शख्सियत है जिसको कुरान सुनाया मेरे आका ने, वो कोई और नहीं, उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजतुल कुबरा है। आए रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, घर आते ही फरमाया मेरे पास एक फरिश्ता आया, सीने से सीने लगाया और उसने ये आयतें अल्लाह की तरफ से सुनाई, मुझे कंबल उड़ाओ, जम्मिलूनी जम्मिलूनी, बार बार कहते मुझे कंबल उड़ाओ, सख्त ठंडियां लग रही है। सैयदा खदीजतुल कुबरा की बातें याद रखो, तारीख में आज भी लिखी हुई हैं। ढारस बंधाने वाली, तसल्ली देने वाली, हौसला देने वाली खातून हो तो जिंदगी कमाल की है। अजीजा ने गिरामी कहती हैं, ए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ए अल्लाह के रसूल, आप यतीमों का बोझ उठाते हैं, आप बेवाओं की मदद करते हैं, आप कमजोरों का हाथ पकड़ते हैं, आपके साथ कभी बुरा हो ही नहीं सकता। ये जो उतरा है वो आपकी भलाई के लिए है। अनकरीब आप देखेंगे जमीन और आसमान की सारी चीजें अल्लाह ताला आपके लिए मुसख्खर फरमा देगा। ये खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की हौसला अफजाइयाँ थी। यहाँ से मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फिर मक्का तशरीफ लाए, और आपको पता है सबसे पहले मक्का मुकर्रमा में अब तारीख़ इस्लाम की शुरुआत है, तारीख़ इस्लाम की शुरुआत है। इस्लाम की तारीख से पहले मैंने इतना बैकग्राउंड बता दिया, तारीख बता दी, हालात बता दिए, सियासी हालात, मजहबी हालात, अखलाकी हालात। अब जो शुरुआत हुई वो कहाँ से? गारे हिरा से शुरुआत हुई, और उसके बाद सबसे पहले घर आए मेरे आका, और सबसे पहला मुसलमान जो इस्लाम में दाखिल होता है वो कोई और नहीं, उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा, घर वाली सबसे पहले इस्लाम में दाखिल हुई हैं। रिवायतों की तत्बीक के एतबार से अलग अलग मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन ने बयान किए। सबसे पहले इस्लाम लाने वालों में सिद्दीक़ अकबर भी हैं, मौला कायनात भी हैं, और हज़रत खदीजा भी हैं, हज़रत ज़ैद भी हैं, हज़रत बिलाल भी हैं। सबकी कैटेगरी के हिसाब से उनको अव्वल दर्जे में रखा गया। औरतों में सबसे पहले हज़रत खदीजा, बच्चों में मौला कायनात। बहरहाल सबसे पहला जो इस्लाम शुरू हो रहा है वो हज़रत खदीजा खुद के घर से रसूलुल्लाह ने शुरू फरमाया, और उसके बाद फिर मक्का वालों को जमा फरमाया। मक्का के सारे लोग हुजूर की बड़ी इज्जत करते थे, लोग अपनी अमानतें हुजूर के पास रखते। आपका लक़ब था अमीन और सादिक, लोग आपको अमीन कहकर पुकारते या सादिक कहकर पुकारते। अपने मशवरों में हुजूर को देखते थे तो खुशियों से फूले नहीं समाते थे। वो कहते कि अगर मोहम्मद किसी मजलिस में बैठ जाए तो अल्लाह की रहमत ही रहमत है। उस वक्त भी अरब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ा एहतराम करते, बड़ी इज्जत करते। उस दिन हुजूर ने जैसी दावत दी पूरा मक्का टूट पड़ा, सब आ गए। हुजूर ने सबसे पहले उनसे सवाल किया, ए मक्का वालों, अगर मैं ये कहूँ इस पहाड़ के पीछे एक फौज है जो तुम पर हमला करना चाहती है तो तुम क्या कहोगे इस बात पर? सारे लोगों ने एक आवाज़ में जवाब दिया, ए मोहम्मद, आज तक आपने कभी झूठ नहीं कहा है। अगर आप ये कहेंगे तो हम सिर्फ यकीन ही नहीं करेंगे बल्कि हम तो उस फौज से लड़ने की तैयारी भी करेंगे। इतना हमें यकीन है आपकी बात पर कि हम उस फौज से लड़ने की भी तैयारी करेंगे जिसके बारे में आप कह रहे हैं पहाड़ के पीछे फौज है। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम जब मेरे बारे में इतना यकीन का एतकाद रखते हो तो सुनो, अब मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि इस पहाड़ के पीछे फौज है जो तुम पर हमला करना चाहती है, बल्कि अब मैं ये कहता हूँ, सुनो गौर से, कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, आखिरी रसूल हूँ, और दीन इस्लाम लेकर के आया हूँ। अल्लाह एक है, अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं की जाएगी, कोई खुदा नहीं है सिवाय अल्लाह के। ये पहला जबल अबू कुबैस के करीब फारान की चोटियां पहाड़ी के पास मेरे आका ने सफ़ा मरवा के दामन में मक्का वालों को जमा किया था। पहली आवाज़ मेरे आका की जुबान से गूंजी थी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब
लोगों को देखने का वक्त था। जाहिर सी बात है, मैंने अरब की तबीयत पहले से बताई, अक्खड़ मिजाज, सख्त मिजाज, नखुवत भरा हुआ, किब्र तकब्बुर भरा हुआ। कब वो एक्सेप्ट करते, सारे लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। कहा क्या हम हुबुल को, जो काबे के ऊपर बैठा हुआ खुदा है, उसको उतार देंगे? सफ़ा मरवा पर जो हमारे खुदा है उनको छोड़ देंगे? खाने काबा के अंदर दरवाजे के अंदर जो खुदा है उनको छोड़ देंगे? चाहे जमजम पर जो खुदा बैठा है उसको छोड़ देंगे? सब कीचे में गोइयाँ शुरू हो गई, बगलें झाँकने लगे। और इसी असना में गुस्से में आकर आपका सगा चाचा अबू लहब खड़ा हुआ। कहा तब्बन लका या मोहम्मद अलिहादा जमाअता, ऐ मोहम्मद क्या इसलिए तुमने हमको जमा किया? बुरा हो तुम्हारा, तुम्हारे हाथ टूट जाएं। ये पहला जुमला था जो नाज़े कल्ब मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाज़नीन कल्ब पर उतरा। उस वक्त तक किसी ने बुरा जुमला आपके लिए इस्तेमाल नहीं किया था। पहला बुरा जुमला इस्तेमाल करने वाला अबू लहब था। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खातिर पर, आपके कल्ब अक़दस पर बोझ गुजरा, बार हुआ, तकलीफ हुई। अल्लाह ताला ने फिर आयतें उतारी, तब्बत यदा अबी लहब व तब, ऐ रसूल आपके नहीं अबू लहब के हाथ टूट जाएं, उसका माल उसे कोई फायदा ना दे। अल्लाह करीम दिफा करता रहा, डिफेंस करता रहा। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दावत को लेकर चल पड़े। पूरा मजमा था मक्का का, लेकिन कोई आगे उठकर खड़ा नहीं हुआ कि ऐ मोहम्मद हम मानते हैं आपको अल्लाह का रसूल, आखिरी रसूल, आप जो दीन लाए उसको मानते हैं, आपका जो खुदा है उसको मानते हैं। नहीं, कोई नहीं था। लेकिन बात इतनी है, इस मजमे से अभी मेरे आका हटे नहीं थे। 9 साल का एक बच्चा हुजूर के करीब आया, पतली पतली टांगे थी, आंखों में आशूब था, आंखें रस रही थी, लाल हो चुकी थी। आया और करीब आकर कहा, ऐ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपको अल्लाह का हकीकी रसूल तस्लीम करता हूँ, आपका दीन मैं एक्सेप्ट करता हूँ, खुदाए वाहिद की मैं इबादत करता हूँ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस 9 साल के बच्चे को सीने से लगाया और दुआ की, मौला इस बच्चे की टांगों में, इसके बाजुओं में तू ताकत अता फरमा और इसको दीन का अजीम सिपाही बना। मेरे आका की ये दुआ थी। 9 साल का वो कमजोर बच्चा जो सबसे पहले हुजूर की दावत पर लब्बैक कहा था, आज पूरी दुनिया शर्क व गर्ब, शुमाल व जुनूब में उसको अगर पुकारती है तो असदुल्लाह गालिब, शेर खुदा हैदर कर्रार के नाम से जानती है। उसकी ताकत को कौन जाने, उसकी ताकत के करीब कौन पहुंचे? ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। उस हैदर कर्रार को जो ताकत और कुव्वत थी, जो खैबर शिकन है, फाटक को उखाड़ कर फेंक देने वाला, मरहब के लोहे वाले लिबास पर तलवार की एक ज़र्ब लगा दे तो उसके सर से लेकर सीने तक टुकड़े कर देने वाली तलवार रखने वाला, ये ताकत कहीं और से नहीं, ये दुआए मुस्तफ़ा से मिली हुई है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस्लाम की तबलीग की शुरुआत यहाँ से हुई। अब उसके बाद मक्का मुकर्रमा के जो हालात थे, सीरत मुस्तफ़ा के बयान में आपने तकरीबन सुन लिया है। तकरीबन 13 साल मेरे आका ने मक्का मुकर्रमा में तबलीग फरमाई, मशक्क़तें उठाई, मुसीबतें बर्दाश्त की, कई सहाबा की यहाँ पर शहादतें हुई। यहाँ पर हज़रत सुमैया का कत्ल हुआ है, हज़रत अम्मार बिन यासिर को यहाँ पर मारा गया, हज़रत यासिर को जलाया गया, और यहाँ पर हज़रत खुबैब बिन अदी, हज़रत ज़ैद बिन दसना, हज़रत खब्बाब बिन अरब, इनके मुसले किए गए थे, कान काटे गए, नाक काटे गए, इनकी ज़ुबानें काटी गई, इनके हाथ पैर काटे गए और इनको फांसी पर चढ़ाया गया। ये सारी तकलीफ़ें मेरे आका ने बर्दाश्त फरमाई। 13 साल तक बिलाल हबशी को तो पैरों में रस्सी डाल करके मक्का वाले खींचते थे, बदमाश लड़के पूरे मक्का की गलियों में घुमाते। उनका आका जो उमैया था वो आपके सीने पर गरम सिल रखता, गरम रेत पर आपको सुलाया जाता। आज की ज़मीन पर, आज भी आप मक्का में जाएं, दोपहर के वक्त आगे 1 मिनट आप बगैर चप्पल के खड़े होकर के दिखा दें, अल्लाह की पनाह, आपके पैरों में छाले ना आए तो बात करना, आपके पैरों में आबले ना पड़ जाए तो मुझसे कहना। लेकिन वो बिलाल हबशी को पूरा दिन गर्म रेत पर सुलाया जाता है। पीठ गल गई थी और उनके पीठ से गोश्त निकल करके चर्बी में तब्दील हो गया, चर्बी निकल गई थी, रीढ़ की हड्डी दिखती थी। ये हज़रत बिलाल के साथ हुए। ये बातें इसलिए मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, इन जालिमों को आज सिर्फ हुजूर की जंगें नज़र आती हैं। हुजूर पाक के साथ मक्का वालों ने जो दहशतगर्दी की थी, जो आतंक मचाया था, वो क्यों नहीं बयान करते? 13 साल तक तलवार नहीं उठाई, न तलवार उठाने का हुक्म दिया। 13 साल बर्दाश्त किए, सोशल बाइकाट भी बर्दाश्त किया, हुजूर ने पत्ते खाए, चमड़े उबाल कर खाए, सब बर्दाश्त किया। फिर हिजरत भी किया, अपना वतन भी छोड़ा, अब मदीना तैयबा तशरीफ ले गए। अब यहाँ से इस्लामी हुकूमत की इस्टेब्लिशमेंट होती है, बुनियाद रखी जाती है
اور میرے دین کی بنیاد جہاں رکھی گئی وہ بہت بڑا کروڑوں کا بنایا ہوا پارلیمنٹ نہیں تھا، وہ کھجور کے چھالوں سے، کھجور کے پھڑ سے بنایا ہوا چھپر کا ایک چھوٹا سا گھرانہ جس کو مسجد نبوی کہا جاتا ہے، یہ مسلمانوں کا مرکز تھا، یہ پارلیمنٹ تھا میرے آقا کے۔ یہاں سے اسلام کی حکومت کا آغاز ہوتا ہے، یعنی اسٹیبلشمنٹ جو ہوئی۔ اب یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ بادشاہوں کو اسلام کی تبلیغ دی، لوگ جوک در جوک اسلام لاتے رہے، اور اس کے بعد اسلامی فتوحات بھی ہوئیں، غزوات ہوئے، جنگیں ہوئیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ جو مدنی دور ہے حضور کا، یہ بڑے سنہرے ابواب میں لکھا گیا۔ وہ ہجرت کا 8واں سال تھا۔ انشاءاللہ العزیز کل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور کے آخری حالات اور پھر حکومت کا جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور اس کے بعد خلافت کا آغاز، جو خلافت کی تاریخ ہے، کیسے خلافت قائم ہوئی، کس طرح سے خلافت کے لیے معاملات آئے، انشاءاللہ تاریخ اسلام کی آگے کی اور بنیادیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور پھر میں آخر میں یہی کہوں گا، میرے آقا کا میں نے ذکر کیا ہے، ہماری ہمت اب جواب دے رہی ہے، پسینے آ گئے، تھک گئے ہیں، سن کر کے ہو سکتا ہے کوئی نہ تھکے، بول کر کے میں نہ تھکتا ہوں، لیکن بات طبیعتوں کے تقاضے کی ہے۔ حضور کا ذکر ایسا ہے، میرے آقا کا ذکر ایسا ہے جس پر کل میں نے جو شعر کہا تھا وہی آج کہتا ہوں، جو کچھ بیاں ہوا وہ آغاز باب تھا، یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔